Hello, good evening, students. Good evening. Good evening, sir. Okay, so now there is one request. Okay, this year also, I feel that for few months online education will be there. Okay, so हो सके तो आप अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन या फिर मोबाइल में जहां पर नेटवर्क और डेटा अच्छा मिलता हो इंटरनेट का वो यूज करिए. दैट वुड बी द बेस्ट थिंग. ये एक का इन्वेस्टमेंट है ऐसा समझिए. ओके, नाउ जस्ट टू गिव यू द हिंट. देखिए अकाउंटेंसी में देर आर मेनी क्वेश्चंस विच वी नीड टू सॉल्व. ओके, सो नेक्स्ट ईयर देखो इस वे से अकाउंट्स होता है. सो दो माय हैंडराइटिंग इज नॉट गुड बट एटलीस्ट पूरे क्वेश्चन को मैं टेक्नोलॉजिकली अच्छे से स्टूडेंट को समझ में आए वैसे सॉल्व करवाता हूँ. बिकॉज विथआउट बोर्ड इट इज ऑल्सो अ चैलेंज. तो डोंट वरी, आपको बोर्ड में जो वर्क स्कूल में जो होता है उससे भी अच्छा यहाँ पर वर्क दिखेगा. बिकॉज इफ क्वेश्चन इज लेंदी एक बोर्ड में पूरा सम सॉल्व नहीं होता है बट हियर वी हैव द एडवांटेज. सो कल हमने कुछ डिस्कशन किया था दैट इज अबाउट black money and white money, but today we are going to start with accounting. Mean what exactly is the accounting, how to record the transactions, that we are going to learn. So are you ready? Yes, sir. Okay, so now you all need to make the heading. This is our chapter. Name or number, okay, may differ chapter, but basic accounting is based on journal. So journal is the most important thing in accounting. Entire accounting is based on journal. Yes. सर एक छोटा सा डाउट था मुझे, कल जो अपन ने पढ़ा था ना उसमें से. ओके, पूछिए. सर लायबिलिटी टर्म अपन यूज करते हैं तो वो पे बैक के लिए करते हैं, राइट? हाँ, लायबिलिटी मींस पेएबल. करेक्ट. हाँ, पेएबल. तो सर कभी कभी पता है पॉपुलेशन में भी हम टर्म यूज करते हैं. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज लायबिलिटी फॉर अस. यस, करेक्ट. मतलब सर तो उसमें उस सेंस में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ना, उसका मीनिंग. Actually, liability means obligation. Means actually it is a negative from the business point of view or from a nation point of view. So from a nation point of view, अगर कोई पर्सन अच्छा कमाता है और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करता है तो वो नेशन के लिए एसेट बन जाएगा. एसेट मींस मिलकत. ओके. एंड इफ द पर्सन इज नॉट अर्निंग तो वो नेशन के लिए बोझ बन जाएगा. जो पर्सन कमाता नहीं है, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन अदर वर्ड्स ये एक बोझा है. इसको हम हिंदी में कहते हैं बोझ या बोझा. ओके, नाउ क्लियर. तो सर हाँ, लायबिलिटी कैन बी आल्सो लाइक उसका दूसरा मीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकता है ना. You are responsible for this. Yes. For the liability. So in economics we can say that कि liability हमारे लिए accounts में it is responsibility. Okay. But in case of nation, liability का meaning होगा like we can say unreliable or unwanted thing. Okay, जो assets को कम कर रही है, opposite of assets. Okay. Right. Okay. Now make a heading journal and we will start this topic, journal. Now journal is most important. Swayam, you are late today again. Okay. So now journal is a primary book of account. What is journal? जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है that you can start writing a journal. What is journal? It is a primary book
of account. When I say primary book of account, it means that transactions, or to be very precise, financial transactions are first recorded in journal. Okay, so financial transactions are recorded in journal. Now format, how the journal looks like. So journal का format आपको book में draw करना है. Now let's say for example this is your book. So format of journal will be like this. Okay, एक छोटी सी कॉलम में अंडरस्टैंड द प्रोपोर्शन. स्वयं टुडे आल्सो यू आर लेट. Sorry, sir. Okay, so try to be on time. So in journal Yes, sir. we write date, यानी कौन से दिन वो ट्रांजेक्शन हुआ था. Okay, if I buy on 1st July, so here I will write date. Then particulars. Now particulars में हम डिटेल्स लिखते हैं. Basically in journal book, in particulars we write journal entries. Particulars में we write journal entries. And here we have LF number. LF number. So LF number means it is ledger folio number. So Aditi, actually today there is no business studies session. Okay, next week it will be there. Okay, let me message. Okay. So it is ledger folio number, and here I will write debit amount, means we have in rupees, and here credit amount. So if I debit any account, so I will write here. If I credit, then I will write here. Okay, so this is the format of journal. And now we will learn how to record the transaction. So actually something I will write in red and something I will write with blue. So take your time, and if you have made this format, prepare karo, and then you can let me know. If it is done, you can tell me. And आज एक क्वेश्चन हम क्रिएट करके सॉल्व करेंगे, and after 3-4 days you will start understanding what exactly is accounting and how it is done. And a bonus, after we finish this chapter I will also teach you computerized accounting. कंप्यूटर में आपके बिजनेस में आपने टैली करके सॉफ्टवेयर सुना होगा. हैव यू हर्ड द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर कॉल्ड टैली? TALLY. Yes, sir. Yes, sir. और याद रखो 11th क्लास सिर्फ एक महीने में, यू जस्ट गिव मी 1 month, एक महीने में आपको कंप्यूटर में टैली में कैसे अकाउंटिंग होता है वो भी आ जाएगा. ओके, सो एंटायर अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन जर्नल. बाकी के चैप्टर्स टाइम पास है. सीए फाइनल तक भी ये जर्नल होता है. तो बेसिकली जर्नल इज नॉट ए चैप्टर, इट इज द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग. जर्नल समझ लिया. यू नो टाटा स्काई की पहले एक एड आती थी एंड दे वर यूजिंग द वर्ड इसको लगा डाला तो लाइफ Chingalala. टिंगालाला. ओके, सो इट्स लाइक दिस के जर्नल को अगर आपने समझ डाला तो आपकी अकाउंटिंग की लाइफ झिंगालाला हो जाएगी. सो चलिए नाउ Sir, बोलो.
सर आपने सर कल की क्लास की लिंक नहीं शेयर की। अच्छा, कल एक्चुअली क्या है, मैंने ब्लैक मनी व्हाइट मनी का कहा था, तो मैं वो अच्छा वीडियो ओके सर। आपको शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे। लिंक नहीं होगी, यूट्यूब पर नहीं होगा, डायरेक्टली मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ओके, ओके सर। मैं ओके भूल सर। जाऊँ तो मुझे मैसेज कर देना। ओके सर। हाँ, सो इफ यू आर डन विद द फॉर्मेट, ओके, आप मुझे बताइए। एंड आई वांट दिस फॉर्मेट इन 2 पेजेस, यानी आपके बुक के फर्स्ट पेज में एक ऐसा होगा, और सेकंड पेज में, उसके बाजू के पेज में भी आप इसी को एक्सटेंड करो। सो वी आर गोइंग टू लर्न मेनी जर्नल एंट्रीज, एंड जर्नल एंट्रीज इज समथिंग विच इज सपोज टू बी अंडरस्टूड। उसे रट्टा नहीं मारना है, उसे समझना है, because only that is the option. So I am also extending this to second page. So आपकी बुक में 2 पेजेस में इस तरह से लाइंस होनी चाहिए। सेकंड पेज में ऊपर हेडिंग नहीं लिखोगे तो चलेगा। लुक हियर, ये मेरा सेकंड पेज है, तो सेकंड पेज में अगेन मुझे डेट पर्टिकुलर्स लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, हेडिंग्स कैन बी गिवन जस्ट वन टाइम। सो ये है मेरा फर्स्ट पेज, यहां फिनिश हो रहा है, एंड दिस इज माय सेकंड पेज। एंड अगर आपने ये लाइंस ड्रॉ कर ली हो तो आप मुझे बताना। यू कैन इंडिकेट बाय रेजिंग अ हैंड, व्हाट्सएप में आपके पास ऑप्शन है। ओके, गुड, सो यू ऑल आर रेडी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नाउ आई एम मेकिंग वन क्वेश्चन। ओके, so this question is this. So in third page you can write the question. So question is this: pass journal entries for below transactions. Now कुछ बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होंगे। So I'm writing here paid salaries of rupees 20,000. You can write along with me, मेरे साथ साथ में लिखिए। Can I say business में भी pay salaries? Yes. Then paid rent of rupees 10,000. भाड़े की जगह है and we are paying rent. Third one, earned commission of rupees 5,000. So we have earned commission. In business, we earn commission sometimes. हमने हमारे क्लाइंट को किसी और को रेफर किया, so it is possible we can earn commission. Fourth one, paid electricity bill of rupees 2,000. In business, we may have to pay the electricity bill. And fifth one, purchased goods of rupees
50,000. Now, what is goods? So goods के लिए I can tell goods is something. It is an item which the business sells. अच्छा, तारक मेहता में जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक, उसके लिए गुड्स क्या होगी? What will be the goods for जेठालाल? टीवी, मोबाइल, फ्रिज. Yes. Now एक फर्नीचर वाला है, उसके लिए गुड्स क्या होगी? टेबल, चेयर. Yes. वुड. Correct. Table, chairs and all. So सर ये तो मतलब शॉप के लिए है ना, अगर किसी का Shop. फैक्ट्री या किसी का वर्कशॉप हो तो बिजनेस में. हाँ, यानी देखो ये है ना, ट्रेडिंग कंपनी के लिए है. ट्रेडिंग कंपनी मींस जो किसी से माल खरीदती है और बेचती है. इट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ सर्विस. सर्विस इंडस्ट्री नहीं है. फॉर एग्जांपल टीचर कोई माल खरीदता नहीं है. सो हम मेन टिपिकल बिजनेस की बात कर रहे हैं, जहां पर परचेस होता है, किसी और से हम माल खरीदते हैं और हम सेल करते हैं. ओके, तो अभी सिंपल एग्जांपल है. अच्छा, ये जो गुड्स परचेज किए हैं उसको हम सेल्स करेंगे. सो आई विल राइट सोल्ड अबाउट goods at rupees 80,000. 50,000 की चीज हमने 80,000 में सेल कर दी. सो दैट इज पॉसिबल. Yes. Now, if you have written till this, then please raise your hand. फिर हम इसे रिकॉर्ड करेंगे. स्वयं, have you written? Yes, sir. Okay. So now look here, there is one rule, okay, which you need to remember. Now accounts में एक नीचे में टेबल बनाता हूं. This table is very very important. Okay, we know there are 5 types of account. So look here, entire accounting is based on debit and credit. हम अकाउंटिंग करते हैं डबल एंट्री सिस्टम से. सो ये आपको क्वेश्चन के नीचे रिकॉर्ड करना है. एंड देयर इज वन सजेशन, आप अपने पास एक रेड पेन भी रखिए. रेड पेन. सो कुछ इंपॉर्टेंट अगर आप बुक में लिखते हो, अगर रेड पेन से होगा तो व्हेन यू रिवाइज योर माइंड विल बी एबल टू कैच फास्टर. ओके, या फिर हाईलाइट कर सकते हो. सो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. व्हाई द नेम इज डबल? बिकॉज इन ईच जर्नल एंट्री डेबिट भी होगा एंड इन ईच जर्नल एंट्री क्रेडिट भी होगा. ओके, सो व्हाई इट इज कॉल्ड डबल एंट्री? बिकॉज बाजू में इन ईच जर्नल एंट्री डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट. इसीलिए नाम है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. डेबिट क्रेडिट दोनों हम रिकॉर्ड करते हैं. नाउ देयर आर फ्यू अकाउंट्स जो बाय नेचर डेबिट बैलेंस वाले हैं. इट इज एसेट्स एंड एक्सपेंसेस. कोई भी एसेट हो वो डेबिट बैलेंस वाला होता है एंड खर्चा क्रेडिट बैलेंस वाला है. नाउ अब देखिए, अगर मुझे कोई एसेट, फॉर एग्जांपल इफ आई बाय द एसेट, बिजनेस में एसेट आया, इफ आई वांट टू रिकॉर्ड द एसेट, तो ये एसेट के अकाउंट को मैं करूंगा डेबिट. सो प्लीज नोट, टू रिकॉर्ड
या फिर इफ आई बाय द एसेट, मुझे एसेट के अकाउंट को डेबिट करना है। अगर कोई एसेट मैंने खरीदा, फॉर एग्जांपल इफ आई बाय एयर कंडीशनर, तो एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट होगा। अच्छा, इफ आई बाय टेलीविजन, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? टेलीविजन अकाउंट। ओके, एंड सर एसेट में सिमिलरली, क्यों डेबिट करते हैं? हाँ एक्चुअली ये फाउंडेशन है। ओके, ये सिस्टम में एसेट को डेबिट इसलिए करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट इज नथिंग बट यू नो टू टर्म्स। ये मैथ्स की तरह है, मैथ्स में नहीं होते प्लस एंड माइनस। अब हमारे माइंड में फिक्स हो गया है कि भाई ये प्लस साइन है तो हमें ऐड करना है, ये माइनस साइन है। ओके, तो इन अकाउंटेंसी डेबिट एंड क्रेडिट्स आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। डेबिट एंड क्रेडिट्स आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, यानी ये कैसे काम करता है देखो, कि एसेट्स अगर बाय किया तो मैं डेबिट करूंगा, बराबर। बट इफ आई वांट टू रिमूव द एसेट, इफ आई एम सेलिंग द एसेट, अगर मैं एसेट को बेच देता हूं, मेरे पास से वो चीज चली गई है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। सो डेबिट लाइक एसेट के लिए ऐसा है कि एसेट आता है तो डेबिट, बिकॉज वो बढ़ेगा, एंड इफ इट इज गोइंग आउट तो क्रेडिट। तो डेबिट एंड क्रेडिट इज जस्ट लाइक प्लस एंड माइनस, ओके, ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। सिमिलरली एक्सपेंस में भी अगर मुझे कोई खर्चा रिकॉर्ड करना है, इफ आई वांट टू रिकॉर्ड द एक्सपेंस, ओके, तो मैं क्या करूंगा? डेबिट, क्योंकि डेबिट वाली बैलेंस जो होती है वो बढ़ानी है तो डेबिट करो। एंड इफ आई वांट टू रिड्यूस या फिर रिमूव द एक्सपेंस, जनरली ये नहीं होता है, लेकिन अगर मुझे एक्सपेंस को कम करना है तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट। नाउ सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि एसेट्स एंड एक्सपेंसेस बोथ हैव डेबिट बैलेंस। इन अदर वर्ड्स, खर्चा हुआ तो खर्चे का अकाउंट डेबिट, और अगर आपने लेट्स से कोई एसेट लिया तो एसेट का अकाउंट डेबिट। और अकाउंट्स में सबसे पहला काम ये करना है, फोकस ऑन द कैश। हम सबका मेन टारगेट क्या होता है? विटामिन एम। विटामिन एम कौन सा है? विटामिन एम। एम फॉर व्हाट? मनी। 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 ओके, सो मनी इज, कैश इज एसेट और लायबिलिटी। हमारे लिए कैश क्या होता है? एसेट। एसेट। Asset. इसलिए तो हम पैसे कमाने की और ज्यादा जमा करने की कोशिश करते हैं। बैंक बैलेंस क्या है? एसेट। एसेट। यस। तो एसेट आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। ये माइंड में फिट कर लो, हमेशा काम आएगा। इफ एसेट इज सर ये कमिंग इन तो डेबिट। अब एक देखो, आपके कुछ डाउट्स भी होंगे। अब देखो यहां पर पेड सैलरीज, बराबर, तो मैंने कहा था पेड सैलरीज। अब यहां पर वर्ड है पेड, पैसे के ऊपर ध्यान दो, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है। एंड यहां पर प्लीज नोट, वी आर द बिजनेस, हम अकाउंटिंग बिजनेस की करते हैं, वी आर नॉट बिजनेसमैन। हम बिजनेसमैन भी नहीं है और हम कोई पर्सन भी नहीं है, हम बिजनेस है। बिजनेस में सैलरी पे हुई, बिजनेस में से पैसा कम होगा, तो कैश आया है कि गया है? गया है। गया है। तो कैश का अकाउंट आप डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? सोच के बताओ। डेबिट। क्रेडिट। नो, मैं क्रेडिट करूंगा। देखो, एसेट, कैश एक एसेट है। अगर कैश आया है बिजनेस में तो मैं डेबिट करूंगा, और अगर कोई एसेट कैश बिजनेस से चला गया है तो मुझे क्रेडिट करना चाहिए।
तो यहां पर आप एक और वर्ड नोट कर लो, कम इन। एसेट में बाय के बाजू में लिखो कम्स इन। अगर कोई एसेट बिजनेस में आता है तो डेबिट, एंड बाजू में लिख दो गोस आउट। इट मीन्स अगर कोई एसेट बिजनेस से चला गया तो क्रेडिट। तो कैश इज एसेट, कैश बिजनेस में आता है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। अगर कैश बिजनेस से चला जाता है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो अब मुझे बताओ यहां पर कैश अकाउंट क्या करोगे आप? क्रेडिट। पर सर क्रेडिट क्यों होगा? बिकॉज कैश जो है इट इज द एसेट, यस और नो, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। एंड एसेट्स बिजनेस में आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। व्हाट इज द रूल? ये फाउंडेशन है अकाउंटिंग का कि एसेट्स आर डेबिट बैलेंस। अगर एसेट को बढ़ाना है तो डेबिट करो, यानी अगर पैसे आते हैं, पैसे की बैलेंस ज्यादा करनी है तो मैं डेबिट करूंगा। और एसेट्स डेबिट बैलेंस है, अगर एसेट चला गया, रिवर्स हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है, तो डेबिट का ऑपोजिट क्या होगा? क्रेडिट। तो व्हाट इज द गोल्डन रूल? कैश इफ इट इज कमिंग इन, डेबिट। कैश इफ इट इज गोइंग आउट, क्रेडिट। आता है तो डेबिट, और अगर कोई एसेट चला जाता है तो क्रेडिट। आर यू गेटिंग? मुझे सेकंड में बताओ। यस सर। डिफरेंट है ना? सॉरी, थोड़ा डिफरेंट है ना ये? हाँ ये सेम है। तो चलो अभी मैं इसकी एंट्री बताता हूँ। पेड सैलरी, सब देखो, पेड के लिए मैंने बता दिया। पेड वर्ड से क्या पता चला? कैश गया है, बराबर। कैश में ऐसे डाउन एरो करता हूं, डाउन एरो का मतलब कैश कम हो गया, बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट, बिकॉज ये एसेट है। नाउ सैलरीज, व्हाट डू फील? सैलरीज इज व्हाट? इनकम या एक्सपेंस? बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बड़ा है। सैलरी हमने पे की है, इसको रिकॉर्ड करना है, तो इसे मैं डेबिट करूंगा। हर ट्रांजेक्शन में डेबिट भी है और क्रेडिट भी है, आपको ढूंढना है। तो माय एंट्री विल बी लाइक दिस। अब डेट जो भी देते हैं तो लिखेंगे, नहीं दी है तो आई विल राइट सीरियल नंबर। तो सिस्टम ये है कि सबसे पहले डेबिट वाला अकाउंट लिखते हैं। सो इट इज written like this, dr। यहां लाइन के बाजू में लिखना है, dr मीन्स डेबिट। और मुझे पता है कि सैलरीज जो मेरा एक्सपेंस है, ओके। अब ये रेड कलर से जो मैं लिखता हूं वो आप पेंसिल से लिखो, बिकॉज वो मेन पार्ट नहीं है जर्नल का। तो एंट्रीज रिटर्न लाइक दिस। पहले जो अकाउंट को आप डेबिट करोगे, सैलरीज। क्यों मैंने डेबिट की? बिकॉज मेरा खर्चा बढ़ गया, ओके। एक्सपेंसिस एसेट की तरह, अगर बढ़ाना है तो डेबिट, कम करना है तो क्रेडिट। बिकॉज मैंने नीचे बताया था व्हाई, बिकॉज सैलरीज एंड एसेट्स, एक्सपेंसिस एंड एसेट्स आर डेबिट बैलेंस। जिसने ये डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत की थी उसने एसेट्स को और एक्सपेंस को डेबिट माना है। यू गॉट दिस पॉइंट? अगर वो क्रेडिट मानता तो हम शायद क्रेडिट करते। यस सर। ओके, सो वी फॉलो द वर्ल्ड ओवर सेम कंसेप्ट्स। एंड यहां पर उसके नीचे थोड़ी लाइन छोड़ते, थोड़ी स्पेस छोड़नी है, एंड फिर ऐसे लिखना है टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट मीन्स कैश इज गोइंग आउट। सो मैं यहां पर लिखूंगा डिक्रीज इन एसेट, मेरा एसेट कम हो रहा है। एंड जितना अमाउंट है उतना हम अमाउंट लिखेंगे। सो 20,000 was the amount. We paid salaries of 20,000. So I will write here salaries debit है 20,000, कैश क्रेडिट है तो वो क्रेडिट में लिखेंगे 20,000। डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल हमेशा सेम होना चाहिए, ओके। एंड हमने ये जो लिखा है इट इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। ये है हमारी जर्नल एंट्री।
इट इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। लेकिन हमने क्या किया है वो नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट सिर्फ कॉमर्स वाले को पता है, साइंस वाले को डेबिट क्रेडिट नहीं पता है। तो साइंस वाला अगर बिजनेसमैन है, मालिक है, तो उसको समझ में आए उसके लिए हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कि ये हमने क्या किया। तो वी राइट narration. Narration means explanation. So I write being salaries paid, bracket over. So now this is called journal entry. ये हमने एक एंट्री पास की, उसके नीचे मैंने लाइन की है, तो दिस इज वन एंट्री। अब ये जो मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा है, दिस एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड नरेशन। ओके, एंड नरेशन क्यों लिखा है? फॉर लेमन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेमन? लेमन मीन्स व्हाट? नॉर्मल इंसान। ओके, जिसको अकाउंट्स नहीं आता है उससे भी ये समझ में आए कि ये क्या हुआ है, तो उससे समझ में आएगा हाँ भाई सैलरी पे हुई है। यू गॉट दिस पॉइंट? सो नरेशन लिखना कंपलसरी है, जर्नल एंट्री के साथ नरेशन लिखना कंपलसरी है। सो एंट्री के नीचे हम क्या लिखेंगे? नरेशन। एंड नरेशन ऑलवेज स्टार्ट्स विद द वर्ड बिंग। वो बिंग वर्ड से स्टार्ट होता है। अब देखो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। सो खर्चा जब भी होता है, टू रिकॉर्ड एनी एक्सपेंस डेबिट करो। एंड कैश अकाउंट तो इजी है, आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। नाउ Okay, sir. if you have written this, then you can raise your hand. सर Yes. सर जो आपने ये तो कैश अकाउंट लिखा था उसको मतलब क्या लाइन छोड़ के लिखनी है कि मतलब अगले लाइन पे लिखनी है? नेक्स्ट लाइन से, डोंट लीव एनी स्पेस हियर, ये साथ में ही लिख सकते ओके हो। ओके सर। सो इफ यू आर डन विथ, ये है ना, मैंने जो रेड से लिखा है ना वो पेंसिल से लिखो, बिकॉज ये सिर्फ फर्स्ट टाइम आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा है। एंट्री में सिर्फ ब्लू वाले कलर वाला ही होता है। सो धीरे धीरे माइंड में फिट हो जाएगा। वेनेवर यू इनकर एनी एक्सपेंस, कोई भी खर्चा किया, वो खर्चे का जो भी नाम हो, टेलीफोन बिल पे किया तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, अकाउंट वर्ड ऐड कर देना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट। कोई Okay, भी sir. खर्चा किया तो खर्चे के बाद अकाउंट वर्ड ऐड करके वो डेबिट कर दो। कैश तो आपको माइंड में ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा, कैश आया है तो डेबिट, और अगर कम हो गया है, चला गया है तो Credit. क्रेडिट। सर कैश तो सब में आएगा ना, हर अकाउंट में? नॉट नेसेसरी, वो धीरे धीरे सीखेंगे। अभी मैंने सिर्फ कैश वाले ट्रांजेक्शन रखे हैं, कुछ केसेस अच्छा, में ओके। बिना कैश वाले भी होते हैं। तो चलिए सेकंड वन आपको होमवर्क में मैं देता हूं। मुझे अभी ओरली बताओ इसकी एंट्री क्या होगी, कौन सा अकाउंट? डेबिट। क्रेडिट डेबिट क्या Credit होगा? account. पहले डेबिट बताओ। Credit. हाँ कैश क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा? पहले डेबिट रेंट पे बताओ। किया तो सर रेंट पे किया तो डेबिट होगा, और जैसे और अपना पैसा भी जा रहा है तो क्रेडिट भी होगा। हाँ कैश तो में, कैश अकाउंट में क्रेडिट होगा और रेंट अकाउंट में डेबिट होगा। यस, तो देखो रेंट खर्चा है तो रेंट का अकाउंट डेबिट, और पेड वर्ड है ना, वो कैश उन्होंने दिया नहीं है, बट पेड से समझ जाओ कि ये कैश है। तो आपकी एंट्री में हमेशा पहले डेबिट ही लिखेंगे। तो कहना इसे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसा लिखा जाएगा। यस सर। ओके, तो चले लिख ही देते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। सेकंड वाला लिख देते हैं
होमवर्क बाद में स्टार्ट करेंगे, बिकॉज कंसेप्ट पहले कुछ समझ में आना चाहिए. सो आई विल राइट हियर. इसलिए मैंने दो ऐसी एंट्री दी थी. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. यहाँ पे क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है. व्हेन आई यूज द वर्ड टू से पता चल गया कि ये वाला अकाउंट हमने क्रेडिट ही किया है. सो क्रेडिट यहाँ पर सीआर नहीं लिखते हैं. यू गॉट. ये रिवाज है, ये रिवाज को मैं बदल नहीं सकता. ये थोड़ी लाइन क्यों गैप रखते हैं, ताकि मिक्स ना हो जाए ये दोनों. ओके, इसीलिए थोड़ा स्पेस रखते हैं प्रेजेंटेशन के लिए. सो यहाँ नरेशन हम लिखेंगे. व्हाट विल बी द नरेशन? बीइंग से ही शुरुआत होगी. Being rent paid. यस, बीइंग रेंट पेड. अच्छा, नरेशन है ना, जो क्वेश्चन में दिया है उसी चीज के आगे बिंग लग देते हैं. बिंग रेंट पेड, बस. कैन आई से रेंट वाज 10,000? यस. Yes, sir. और कैश भी गया है 10,000. तो अगर सेकंड एंट्री आपको एकदम क्लियर है तो रेज योर हैंड एंड बताइए इफ यू आर क्लियर. क्या बात है, अमन एकदम फॉर्म में है. ओके, तनीश, आर यू क्लियर? स्वयं. Yes, sir. ओके, तो चलिए अब मैं देखता हूं कि आप में से कौन ये बता पाता है. थर्ड वन अलग है थोड़ा. सर डेबिट. सर क्रेडिट. हाँ, पहले डेबिट बताओ. डेबिट क्या होगा इसमें? सर सर Cash सर debit earn होगा किया ना सर. सर अपने. परफेक्ट. ओके, कैश डेबिट होगा. कैसे? क्योंकि सर इसमें एसेट बढ़ा ना, इसलिए. हाँ, लोग सर हमने सब अर्न किया ना इस तरह इसीलिए. यस. तो अर्न यानी सोचना है कि भी अर्न का मतलब कैश मिला होगा. यस. तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया. तो पहला एक काम करते हैं, डेबिट पहले डिसाइड करके लिख देते हैं थर्ड में. सर पहले हमेशा लिखते डेबिट ही है. यस, कंपलसरी. कैश अकाउंट डेबिट, ये प्रेजेंटेशन है, रिवाज है जिसको फॉलो करना है. देखो, रिवाज तो हमेशा फॉलो करने पड़ते हैं. अच्छा, क्रेडिट क्या होगा इसमें? क्रेडिट कमीशन अकाउंट. सर कमीशन. ओके, तो कमीशन क्रेडिट होगा, लेकिन क्यों होगा? क्योंकि वो खर्चा है या इनकम है? इनकम. इनकम है. इनकम. यस. तो टू कमीशन अकाउंट, और नरेशन आप खुद ही लिख पाओगे, है ना. बीइंग के बाद बीइंग कमीशन रिसीव्ड, बीइंग कमीशन रिसीव्ड. अच्छा, आप रीजॉइन करो. सिर्फ 1 मिनट बाकी है, तो प्लीज रीजॉइन इन ए मीटिंग. 40 मिनट्स में ये एंड हो जाती है. ओके. So welcome back. Are you able to see the screen? So सर इसमें सर इसमें क्रेडिट तो नहीं होगा ना सर? हाँ, देखो मैं अभी ये पूरा कंप्लीट करता हूं. क्रेडिट में क्या सिचुएशन है कि क्रेडिट में बेसिकली अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. एसेट का ऑपोजिट क्या होता है? लायबिलिटीज. एसेट यानी Liability. एसेट यानी बेच के फ्यूचर में कुछ मिलेगा, मिल्कत है ये. और ये ऑब्लिगेशन है, आपको फ्यूचर में पैसे जाएंगे. ओके, तो लायबिलिटीज. सो लायबिलिटीज के लिए रूल ऐसा है कि इफ यू वांट टू रिकॉर्ड, या फिर जब लायबिलिटी को बढ़ाना है तो उससे क्रेडिट करो. क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट करना चाहिए, तब वो बढ़ती है. इट्स कॉमन सेंस. क्रेडिट को क्रेडिट करो तो वो बढ़ेगा.
जैसे यहाँ पे नहीं था, डेबिट बैलेंस को डेबिट करो तो वो बढ़ गया, एसेट इंक्रीज हो गया। इसके नीचे आप ये वर्ड यूज कर लो, इंक्रीज। ओके, तो लुक हियर, क्या है, डेबिट बैलेंस को अगर आप फिर से डेबिट करते हो तो वो बढ़ जाती है। सर ये मैथ्स जैसा है ना, माइनस माइनस प्लस। हाँ यस, मैथ जैसा है। और क्रेडिट बैलेंस को फिर से क्रेडिट करो तो वो बढ़ जाती है। हाँ। और सेम वे, अगर मुझे ये क्रेडिट बैलेंस है उसको लायबिलिटी मान लेते हैं, लोन मैंने पे कर दी, यानी अब मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई, तो टू रिमूव, मुझे लायबिलिटी को डिक्रीज करना है, टू रिमूव या फिर रिड्यूस। तो क्रेडिट वाले को हम जब डेबिट कर देंगे तो वो कम हो जाएगा। लॉजिक क्लियर हो रहा है? क्रेडिट को Yes, sir. क्रेडिट करो तो वो बढ़ेगा, लेकिन उल्टा किया तो वो डाउन हो जाएगा, ऐसे। अच्छा, अब ये लायबिलिटीज कहो या कैपिटल कहो, बोथ मीन सेम। आई टोल्ड यू लायबिलिटीज मीन्स जो घर वालों को पे करना है वो, या जो बाहर वालों को पे करना है वो। जो बाहर वालों को पे करना है बाहर वो, वालों को पे करना है। यस, एंड कैपिटल मीन्स किसको पे करना जो है? खुद को पे करना है। घर वालों को। हाँ, तो कैपिटल मीन्स ओनर को जो पे करना है वो है कैपिटल, और जो आउटसाइडर को पे करना है वो है लायबिलिटी। तो देखा जाए तो कैपिटल भी एक लायबिलिटी ही है, सीधी बात है, क्योंकि बिजनेस के लिए बाहर वाले को पे करो या घर वाले को करो, पे तो करना है, तो कैपिटल भी लायबिलिटी है, लेकिन हम अलग से लिखते हैं ताकि मिक्स ना हो जाए। ओके, एक स्पेशल जगह होनी चाहिए, खुद के पैसे इन्वेस्ट कितने हुए हैं वो पता करने के लिए एक नया अकाउंट क्रिएट किया है, कैपिटल। अच्छा, एक्सपेंस का ऑपोजिट क्या होता है? इनकम। वेरी गुड। सो ये चार्ट में आपने देखा होगा कि एकदम परफेक्ट वे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इनकम में भी सेम इसी की तरह, अगर मुझे इनकम को रिकॉर्ड करना है या फिर इनकम को बढ़ानी है, क्रेडिट वाले को कैसे बढ़ाओगे? क्रेडिट करके या डेबिट करके? क्रेडिट करके। क्रेडिट करके। क्रेडिट। एंड क्रेडिट वाले को अगर मुझे रिड्यूस करना है या बुक से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। डेबिट। सो ये चार्ट अगर आपने नोट कर लिया हो तो रेज योर हैंड, फिर मैं वो एंट्री एक्सप्लेन करता हूं थर्ड वाली, तब आप समझ पाओगे। ओके, स्वयं, हैव यू रिकॉर्डेड? यस सर। अमन, रिकॉर्ड हुआ है? यस सर। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर अर्नड कमीशन, आपने ये चीज बराबर पकड़ ली थी। अर्न मींस कैश आया है 5,000, तो आपने कैश अकाउंट को डेबिट किया है 5,000, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये आपने ही बताया है, बराबर। नाउ फिर भी रीजन पेंसिल से लिख सकते हो, ऊपर वाली एंट्री में अपवर्ड एरो यानी इंक्रीज हो रहा है। क्या हुआ इंक्रीज? खर्चा, EXP यानी एक्सपेंस। ऊपर वाली एंट्री में कैश को क्रेडिट किया था क्योंकि मेरा एसेट कम हो रहा था, और हमें पता है एसेट और एक्सपेंस दोनों डेबिट बैलेंस है। अगर बढ़ता है खर्चा तो डेबिट करो, और अगर एसेट
कम होता है तो क्रेडिट करो। सिमिलरली यहां पर एसेट के लिए, कैश के लिए सिंपल रूल है, कैश आता है बढ़ता है तो डेबिट करो, क्योंकि एसेट का रूल क्या है, एसेट को बढ़ाने के लिए डेबिट करो। अब कमीशन का रूल आप मुझे बताओ, कमीशन को क्रेडिट किया, रीजन क्या है, ये कमीशन क्या है आपके लिए? इनकम। वेरी गुड, इनकम। ओके, कमीशन इनकम है। सो यहां पर अमाउंट तो एक ही देंगे लेकिन दोनों में सेम अमाउंट ही होगा। आई होप एक चीज को हम दो में स्प्लिट करते हैं, हर ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट छुपा होता है, उसे हम फाइंड करते हैं। और कमीशन क्रेडिट किया, जो मैंने यहां पर ही बताया था कि अगर कमीशन कमाया तो वो आपकी इनकम है, और इनकम रिकॉर्ड करनी है तो उस इनकम को क्रेडिट करो। नाउ आर यू गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, यस सर। ओके। नाउ ये वाला जो है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये होमवर्क में, क्योंकि ये ऊपर वाले की तरह ही है, बराबर। एंड नाउ यस परचेज सर। गुड्स एंड सोल्ड गुड्स। याद रखिए जब भी हम परचेस करते हैं गुड्स को, माल को, तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा। तो मुझे बताओ यहां पर जब आप गुड्स परचेस करोगे, सिर्फ डिस्कस करता हूं, आप होमवर्क में करना इसकी एंट्री, तो मुझे बताओ परचेस इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस। एक्सपेंस। पहले एक्सपेंस। पहले कैश का बता दो, एंट्री 5 में कैश आया या गया? गया। गया। कैश गया डेबिट या सर, गया। क्रेडिट? डेबिट। नो, मिस्टेक कर दी, कैश क्रेडिट क्रेडिट। सर, क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिट। कैश क्रेडिट, बराबर। अच्छा, मुझे पहले 6 एंट्री में बताओ, कुछ चीज बेची है, पहले रोकड़ा के ऊपर ध्यान दो, तो पैसा आया के गया 6 में? आया। गया। तो कैश को एंट्री 6 में डेबिट करोगे या क्रेडिट? सर डेबिट। क्रेडिट। डेबिट करोगे, ओके। क्यों करोगे, रीजन क्लियर है? कैश आता है तो डेबिट, Yes, जाता sir. है तो क्रेडिट। अच्छा चलो एंट्री 5 की बात करते हैं फिर से। ये परचेस गुड्स है ना, तो एक अकाउंट होता है परचेस अकाउंट, और नीचे बेचा है तो क्या नाम होगा? सेल्स अकाउंट। तो परचेस आपका खर्चा है या इनकम है? खर्चा। 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 और खर्चा जब बढ़ता है तो डेबिट करेंगे, यस या नो? यस सर। यस। देखो नीचे ही, Yes, sir. एसेट हो या खर्चा हो, रिकॉर्ड करना है तो डेबिट, तो ये परचेस होगा डेबिट। और अगर ये डेबिट हो या ना हो कंफ्यूजन है तो भी समझ जाओ, अगर एक क्रेडिट है तो बाकी वाला ऑटोमेटिकली क्या होगा? डेबिट। 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 नाउ कैश यहां पर डेबिट है तो सेल्स क्या होगा ऑटोमेटिकली? क्रेडिट। क्रेडिट। लेकिन Credit. रीजन बताओ कि सेल्स को क्रेडिट क्यों किया, रीजन बताओ। क्योंकि दूसरा वाला पहले से ही डेबिट है। नहीं, वो ऐसा रीजन नहीं, फंडामेंटल रीजन। सेल्स को क्रेडिट क्यों करेंगे, यहां से रीजन बताओ। सेल्स इनकम है वेरी गुड, और उसे इनकम है, रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना है, इनकम को रिकॉर्ड करना है तो क्रेडिट करो। देखो इनकम रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट करो, सेल्स को हमने रिकॉर्ड किया इसलिए क्रेडिट किया। तो ये एंट्री में आप प्रेजेंटेशन कर पाओगे कि नहीं? डेबिट क्रेडिट डिसाइड Yes, हुआ, sir. लिखना कैसे है वो तो आप डिसाइड कर पाओगे, यस सर। ओके। Yes, भले sir. मैंने यहाँ कैश क्रेडिट पहले लिखा है, लेकिन जब आप लिखोगे तो परचेस अकाउंट डेबिट और नीचे टू कैश अकाउंट और नरेशन बीइंग परचेस गुड्स, ओके। यस सर। नरेशन ठीक। में अमाउंट नहीं लिखते क्योंकि अमाउंट तो ऑलरेडी दिखता है ना कॉलम में, इसलिए। तो क्या ओके सर। आप ये 5 एंड 6, 4, 5 एंड 6 होमवर्क में कर पाओगे? यस सर। Yes, sir. बराबर।
तो आप होमवर्क में करके ग्रुप में शेयर कर देना, मैं देख लूंगा, अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, ओके सर। कोई एक जन ने भी क्या है कि किया होगा तो आप ग्रुप में शेयर कर देना। तो फिर आज का सेशन रिकॉर्डेड आपको कल मिलेगा। अभी मैं घर अंजार क्या है, फटाफट मुझे जाना होगा, वहां पे भी ट्यूशंस होते हैं। तो कल आपको 12 o'clock से पहले मैं अपलोड कर दूंगा रिकॉर्डिंग। ओके, एंड आई विल शेयर। चलिए ओके सर। कल मिलते सर ये हैं। ओके सर। जी बोलो। सर, सर ये नोट्स भेज दीजिएगा ना स्क्रीनशॉट। हाँ, ये नोट्स भी मैं शेयर कर देता हूँ। ओके, जी। आज अभी मैं नोट्स शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ओके सर। चलो बाय बाय। ओके सर, बाय सर। बाय सर। सो बहुत ही मस्त सब्जेक्ट है।